Yeah. Good morning, everyone. So we can start with the today's lecture. In the previous lecture, we understood some things about the expenses. Expenses, if increase, we have to debit them, and expenses, if decrease, we have to credit them. Generally, expenses keeps on increasing. Expenses keeps on increasing. We accumulate the expenses throughout the year, and at the end of the year, we minus from income to find out profit. So when you incur and pay the expenses, you incurred and you paid, so there is no liability. जैसे एक्सपेंस आपने इंकर किए वैसे आपने पेड किए. So expenses, expense increase, therefore debit. Cash, you paid, cash or bank balance will decrease, therefore credit. ठीक है. So expense account debit होगा, cash account credit होगा. That expense can be any of the expense. It can be purchase of goods is also expenses, like purchase debit to cash credit. You can pay like advertisement expense, advertisement account debit to cash account credit. You can purchase printing and stationery, purchase of printing and stationery, the printing and stationery and not purchase account. Purchase of goods is purchases, purchase of goods is purchases, anything else is that account, specific account. Like example, you purchase goods, purchase account. You purchase machinery, machinery account. You purchase land, land account. You purchase computer, computer account. Try to understand. So you purchase printing and stationery, it is a printing and stationery account. Only purchase account is only for the goods when you purchase them. ठीक है. So ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. You paid salary, salary expense debit to cash credit. You paid wages, wages expense account debit to cash, wages account debit to cash. Sometimes you incur the expense but you don't pay. You incur the expense but you don't pay. What do you mean by this? They are payable. They are payable. Those expenses are not paid. Means expense payable. Expense भी है, payable भी है. Expense debit because there is expense, and payable है मतलब liability बन चुकी है credit because liability को credit किया जाएगा. So entry आएगी expenses account debit to expense payable या outstanding expense account. That is example salary payable है तो रहेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल अकाउंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी. वेजेस पेएबल है, एक्सपेंस पेएबल है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस पेएबल अकाउंट या आउटस्टैंडिंग वेजेस. समझ में आ रहा है. सो पेएबल लाइक क्रेडिट, क्रेडिटर्स, परचेस गुड्स के बाद पे करना बाकी है तो हम क्या एंट्री डालते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स या पार्टी. क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी. देन ठीक है, ये तो हमने देखे थे. ये जो पेएबल है अगर नेक्स्ट ईयर में पे करोगे, बाद में पे करोगे तो क्या होता है, सैलरी पेएबल नाउ पेड, वेजेस पेएबल नाउ पेड, तो इट इज लायबिलिटी पेड. वो क्या होता है, लायबिलिटी, जो लायबिलिटी बन चुकी थी वो पेड हुई है, इसलिए एंट्री आएगी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है डेबिट, कैश भी डिक्रीज हो रही है क्रेडिट, असेट डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, असेट डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, टैली हो जाएगा राइट. असेट डिक्रीज होगी, कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट राइट. अब लिख लेना नेक्स्ट. इफ यू पे समथिंग एडवांस, समथिंग इन एडवांस, आप मूवी टिकट एडवांस में बुक करते हो मतलब सर्विस मिलनी बाकी है, पहले आपने टिकट बुक करके रखे. आईपीएल मैच के टिकट आपने पहले ही निकाल के रखे. एडवांस बुकिंग बोलते हैं, पता है ना आपको, नाम क्या होता है, एडवांस बुकिंग. ओपन प्रीपेड इज एडवांस, आप पहले ही रिचार्ज करके रखते हो और बाद में आपको आपका जो ये रिचार्ज है वो यूज करते हो. पहले पे करना होता है, बाद में सर्विस मिलती है. समझ में आ रहा है. आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, पहले सर्विस मिलेगी बाद में पे करेंगे, पहले सर्विस लेंगे बाद में पे करेंगे. प्रीपेड मतलब क्या, पहले पे करना है बाद में सर्विस. समझ में आ रहा है. सो प्रीपेड मींस प्री पेड, पहले ही पेड किया है, सर्विस मिलने के पहले
ही पेड किया। सो कोई सर्विसेज के लिए हमें पहले ही पे करना था, लाइक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में हमें प्रीमियम पे करना होता है, एंड बाद में अगर कुछ होता है तो कंपनी हमें पॉलिसी कवर दे देगी, हमें पैसे दे देगी। समझ में आ रहा है? हमने हमारे व्हीकल के लिए इंश्योरेंस निकाला है, जो सबको पता होगा, व्हीकल इंश्योरेंस। तो हमें क्या करना होता है, हमें पहले साल के बिगिनिंग में प्रीमियम देना होता है, एंड फिर पूरे साल अगर गाड़ी को कुछ होता है तो इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, हमें हमें पे करते हैं, हमें देते हैं। सो पहले हमें पे करना होता है, बाद में वो हमें बेनिफिट देंगे। सो सच थिंग्स आर प्री पेड। रेंट भी बहुत बार प्रीपेड होता है। हमें मंथ के बिगिनिंग में उस मंथ का रेंट देना होता है, एंड में नहीं देते। जो मंथ स्टार्ट हो रहा है उस मंथ का रेंट पहले देना होता है। सैलरी एंड में मिलती है, सैलरी पहले नहीं मिलती। हर एक्सपेंसेस का पेमेंट का टाइम होता है। सैलरी पूरे मंथ काम करो, फिर मंथ के एंड में मिलेगी। वेजेस पूरा वीक काम करो, वीक के एंड में मिलेगा, राइट? या पूरा डे काम करो, डे के एंड में मिलेगा, राइट? दूसरा, लाइक इंश्योरेंस, रेंट, ये सब 100% पहले पे करने होते हैं। 100% पहले पे करने होते हैं। कोई कभी कभी हम थोड़ा एडवांस देके रखते, बोलते बाद में काम होने के बाद देंगे, ऐसे भी होता है, ठीक है? सो इफ यू पे एनीथिंग एडवांस, द अकाउंट इज प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, ईएक्सपी मतलब एक्सपेंस अकाउंट, पूरा लिखो आप, एक्सपेंस अकाउंट, मेरे पास स्पेस नहीं है। एंड दूसरा है, आपने कैश दी है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट इज असेट। एनीथिंग पेड इन एडवांस इज असेट। क्यों? बिकॉज बेनिफिट मिलना बाकी है, बेनिफिट मिला नहीं है, बेनिफिट मिलेगा, तब हमें पे नहीं करना है। एक बार आप रिचार्ज करते हो, सपोज आपने 100 रुपीज का रिचार्ज किया, आपने 100 रुपीज का रिचार्ज किया, तो आपको 100 का बेनिफिट मिलना बाकी है। फिर आपने 10 रुपए का कॉल किया तो बैलेंस बचेगा 90। फिर आपने 20 रुपीज का कॉल किया, बैलेंस बचेगा 70। सपोज आपने 5 रुपए का कॉल किया, बैलेंस बचेगा 65, बैलेंस बचेगा 65। जैसे जैसे आप कॉलिंग करोगे वैसे वैसे आपका बैलेंस कम होता जाएगा। आप फिर से पे कर रहे हो क्या? लाइक आपने 10 का कॉल किया तो फिर से 10 नहीं पे करना है, आपने जो पहली पे करके रखा है उसमें से माइनस होगा। फिर आपने 20 का कॉल किया, 90 से माइनस होगा। फिर आपने 5 रुपीज का कॉल किया, 70 से माइनस होगा, 65 बचेगा। सपोज आपने बाद में एग्जाम्पल 10 का कॉल किया, तो आपका बैलेंस कितना रहेगा? 55। बाद में वो जो आपने पहले ही पेड करके रखा है 100 रुपीज, वो यूज होता जाएगा, अलग से फिर से पेड करना क्या नहीं। मतलब ये जो 100 रुपीज है ना, ये 100 रुपीज है, वो प्रीपेड है, इसलिए आप बोलते हैं प्रीपेड वाउचर। प्रीपेड है, पहले पे करके रखा है, इट इज एन असेट फॉर यू, इट इज एन असेट। आपका बैलेंस होता है, आपका बैलेंस होता है कंपनी के पास। जैसा बैंक में हमने कैश रख के रखी है, हमारी बैलेंस है वो, हमारी कैश है वो, हमारा एसेट है, वैसे ही हमने कंपनी को पहले ही पे करके रखा है। आजकल दूसरा एग्जांपल दे सकता हूँ। एग्जांपल, पेट्रोल रिचार्ज कार्ड होते हैं, पता होगा आपको, प्रीपेड होते हैं पेट्रोल प्रीपेड कार्ड्स, राइट? या दूसरा, आप टोल नाका पे जाते हो, स्मार्ट कार्ड होता है, देखो स्मार्ट कार्ड, उसमें वो लेजर स्कैन हो जाता है अपने आप, और आपके अकाउंट से टोल डिडक्ट हो जाता है। आप मतलब आपको पहले ही पैसे रखने होते हैं। अनदर एग्जांपल इज पेटीएम, उसमें पहले पैसे रखो, वो वॉलेट है, वॉलेट वॉलेट में पैसे होने चाहिए तो पे कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक गूगल पे और फोन पे और गूगल पे इज डायरेक्टली लिंक टू योर बैंक, डायरेक्टली बैंक से माइनस होता है। फोन पे में क्या होता है, कंसेप्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, गूगल पे एंड फोन पे। और दूसरा पेटीएम, ये वॉलेट है, ई वॉलेट। वॉलेट में पैसे होगे तो पे करोगे, आपके जेब में पैसे होगे तो पे करोगे। तो इसमें क्या होता है, दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड, डायरेक्टली लिंक टू बैंक अकाउंट।
मतलब पेमेंट करोगे ना तो बैंक से माइनस होगा। इसमें क्या होता है, पेटीएम में हमें बैलेंस रखना होता है, कीप बैलेंस इन पेटीएम, कीप बैलेंस इन पेटीएम। पेटीएम में हमें बैलेंस रखना होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पेटीएम में बैलेंस रखना पड़ेगा और फिर राइट, पेटीएम में बैलेंस रखेंगे और फिर वहां से पेमेंट होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पेटीएम में बैलेंस है, असेट है, कैश बैलेंस है, असेट है, राइट, बैंक बैलेंस है, असेट है। सिमिलरली 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने जो प्रीपेड रिचार्ज करके रखा है वो भी आपकी असेट है, बिकॉज आपको बेनिफिट मिलेंगे उतना, उतने के रुपीज के कॉल कर सकते हो, कोई छीन नहीं सकता आपका राइट, दैट इज योर राइट एंड राइट्स आर असेट। आपने मूवी का टिकट लेके रखा है प्रीपेड, आपने एडवांस करके रखा है, एडवांस बुकिंग प्रीपेड है, कोई आपसे छीन नहीं सकता वो राइट, वो आपकी असेट है। हाँ, मूवी खत्म होने के बाद वो असेट खत्म हो जाती है, फिर आप मूवी को जाओ या ना जाओ, मूवी को जाते हो तो मूवी देखोगे, अगर आप भूल जाते हो मूवी जाना तो उसके बाद उस प्रीपेड का कोई ही नहीं, लाइक प्रीपेड की भी एक लिमिट होती है, इतने दिन ही वो रिचार्ज चलेगा, अगर आप यूज करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो खत्म हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक पीरियड होता है, बेनिफिट का एक पीरियड होता है। सो अगर आपने कुछ भी एडवांस में पे करके रखा है, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना प्लीज, एनीथिंग यू हैव पेड इन एडवांस, एनीथिंग यू हैव पेड इन एडवांस इज असेट। क्यों? बिकॉज बेनिफिट्स विल बी रिसीव्ड, बेनिफिट बाकी है, सो दैट इज असेट, तो लिख लेना राइट। द हेड इज प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट असेट, दूसरा इज कैश। prepaid expense account increases, asset increases, prepaid expenses increases, cash decreases, prepaid expenses increases, cash decreases, equal हो जाएगा। तो लिखो asset will increase, cash will decrease। जो asset increase होगी डेबिट, जो asset decrease होगी क्रेडिट, ठीक है। इसलिए increase in asset, increase in decrease in asset is equal to no change in the capital, no change in the liability। No change in the asset, no change in the liability। आपको फिर से पे करना पड़ेगा क्या? नहीं होगा, एक ही बार पे करना है, ठीक है। आएंगे हम एग्जांपल्स पे, लिखो इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड, सो यू रिसीव्ड कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट असेट इंक्रीजेस डेबिट। You received interest, you received commission, right? It is not expense bhai Mansi, it is asset, asset। Prepaid expenses are not expenses, they are asset। Prepaid expenses are asset, ठीक है, इट्स नॉट एक्सपेंसेस, इट्स एन असेट, पहले ही पे करके रखा है, ठीक है ना। अगर ये नहीं समझ में आता तो टाइमिंग रहने दो, मैं आपको उसको एक्सपेंस के साथ मैच करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये अभी नहीं समझ में आ रहा तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ना अभी ये कंसेप्ट जो मैंने प्रीपेड की बोली ना, इट इज वेरी एक्चुअली लास्ट चैप्टर की कंसेप्ट है, लास्ट चैप्टर की कंसेप्ट है, डोंट वरी, मैं समझाऊंगा, ठीक है। वो उसको एक्सपेंस में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी समझाऊंगा, अभी असेट है वो, बट कभी ना कभी एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट होगी, वो कैसे करना है वो डिप्रिसिएशन जब आएगा ना तब समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्रीपेड राइट नाउ, स्टिल इट्स फाइन, डोंट वरी, क्योंकि वो एक्चुअली एक एक्सपेंसेस को असेट में कन्वर्ट करने की कंसेप्ट होती है, वो कंसेप्ट मैंने अभी तक ली नहीं है, सो वो डिप्रेशन के टाइम ले लूंगा, डोंट वरी। आगे नहीं, अभी क्या किया मैंने, एक्सपेंसेस की सब चीजें लिख दी ना, इसलिए मैंने उसमें लिख दिया। आगे income earned and received, commission received, dividend received, interest received, sale of scrap, you receive the money, इसलिए cash comes in, cash increases debit, and दूसरा होता है income account, income is income obviously, increase हो रही है credit, so cash will increase, asset will increase is equal to income increases, capital increases, income increases, capital increases,
no change in the liability. Expense increase, capital will decrease. Income increase, capital will increase. क्योंकि incomes increases profit and therefore capital increases. Like dividend received, cash account debit to dividend received. Commission received, cash account debit to commission received account. Rent received, cash account debit to rent received account. Received is income. Rent received, commission received, right? Interest received, discount received, sale of scrap, all those are the incomes. वो इनकम जो होते हैं ना, वी रिसीव द मनी, इसलिए कैश इंक्रीजेस. और यहाँ पे इनकम इंक्रीज होने से कैपिटल विल इंक्रीज. कैपिटल इंक्रीज मतलब क्रेडिट, इसलिए इनकम को क्रेडिट किया जाता है, या इनकम इंक्रीज इज ए क्रेडिट. सो कैश टू, देखो एक्सपेंस और ये वाला कंपेयर करो, 17 एंड 20 कंपेयर करो. 17 एंड 20. 17 में जब एक्सपेंसेस किए कैपिटल माइनस हुआ. देखो जब एक्सपेंसेस किए कैपिटल माइनस हुआ, जब इनकम्स आए कैपिटल इंक्रीज किया हमने. एरो देखो आप इक्वेशन में. जब एक्सपेंसेस पेड करने पड़े तो हमने कैश दे दी. ले भाई सैलरी ले ले, ले भाई रेंट ले ले, ले भाई वेजेस ले, प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए ले, एडवर्टाइजमेंट के लिए कैश दे रहे हो, डिक्रीज. और इनकम में कैश आ रही है, कैश आ रही है, कैश आ रही है, कैश इंक्रीजेस. एक्सपेंसेस आर डेबिट्स, इसलिए एक्सपेंसेस को डेबिट किया है. इनकम्स आर क्रेडिट, इसलिए इनकम को क्रेडिट किया है. ठीक है. नेक्स्ट, समटाइम्स ध्यान देना, इनकम इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड. लाइक कैश सेल, ये कैश सेल का एग्जांपल आ गया. इनकम अर्न एंड रिसीव्ड, कैश सेल. सेल हो गया, इनकम हो गई और पैसे भी आ गए. सेल इज इनकम और पैसे भी आ गए. सो लाइक कैश सेल. दूसरा क्रेडिट सेल भी होता है. लाइक आपने सेल किया है, इनकम अर्न की है, बट द प्रॉब्लम इज, राइट, बट द प्रॉब्लम इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. आपने इनकम अर्न की है बट पैसे नहीं मिले, रिसीवेबल है, डेटर है, डेटर. सो लिखो आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इनकम. डोंट से डेटर, डेटर इज ओनली क्रेडिट सेल के केस में, अदरवाइज वी से आउटस्टैंडिंग इनकम. आउटस्टैंडिंग इनकम इज असेट. आएंगे पैसे मिलेंगे, रिसीवेबल है, रिसीवेबल. आउटस्टैंडिंग इनकम या इनकम रिसीवेबल, दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, इनकम रिसीवेबल. या अगर आपको ये दिक्कत जाता है तो यू कैन यूज द वर्ड इनकम रिसीवेबल. एनी रिसीवेबल इज असेट, डेबिट. और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जगह यू कैन यूज एक्सपेंस पेएबल. कभी कभी वो इजी होता है. लिखो एनी पेएबल इज अ लायबिलिटी, मतलब आपको क्लिक होगा. एक्सपेंस पेएबल या इनकम रिसीवेबल. इनकम रिसीवेबल इज असेट, इनकम असेट इंक्रीज डेबिट, इट्स इनकम. दूसरा अकाउंट रहेगा इनकम, इनकम इंक्रीजेस क्रेडिट. इक्वेशन में असेट इंक्रीजेस, कैपिटल इंक्रीजेस, जीरो. समझाऊंगा मैं, लिख लेना. लिख लेना. सो एग्जांपल लिखो. एग्जांपल, अब मैं कंबाइन एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल, rent paid rupees 10,000. This is example. Second, rent payable
दीज आर अलग अलग ट्रांजैक्शंस. आप एंट्री कैसे चेंज होती है देखो. रेंट पेएबल रुपीज 10,000. थर्ड, रेंट पेड इन एडवांस. ये तीन चीजें. रेंट पेड मतलब एक्सपेंसेस पेड. रेंट पेएबल मतलब रेंट एक्सपेंस है बट अभी तक पेड नहीं हुआ है. रेंट पेड इन एडवांस रुपीज 10,000. सॉल्यूशन. फर्स्ट, रेंट पेड में एक्सपेंस पेड हुआ है तो दो अकाउंट्स आर रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट एंड कैश अकाउंट. पेड है, पेड का मतलब कैश पेड हुई होगी. रेंट अकाउंट इज एन एक्सपेंस, कैश अकाउंट इज एन एसेट. जितने एक्सपेंसेस पे करोगे एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बट कैश विल डिक्रीज. इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन कैश क्रेडिट. अगर कैश क्रेडिट हो रही तो रेंट ऑब्वियसली डेबिट होगा, उतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए. एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, उतना भी क्लिक हो सकता है आपको अभी. ठीक है, नेक्स्ट. रेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा. आगे नेक्स्ट. ठीक है, ध्यान देना. इक्वेशन में एंट्री लिखता हूं. व्हाट इज द एंट्री? रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10,000. 2, कैश गोज आउट क्रेडिट. कैश गई तो क्रेडिट करो, एक्सपेंसेस को डेबिट करो, इनकम्स को क्रेडिट करो. रूल है, एक्सपेंस को डेबिट करो. देखो जनरली एक्सपेंस इंक्रीज ही होंगे, इनकम्स को क्रेडिट करो बिकॉज जनरली इनकम्स इंक्रीज ही होंगे. ठीक है, इक्वेशन में कैश कम हो गई 10,000 की, कैश कम हो गई. अब इक्वेशन कब टैली होगा? असेट साइड पे 10,000 कम हुआ है, असेट पे 10,000 इंक्रीज हो या लाइबिलिटी साइड पे 10,000 माइनस हो. यहां पे इक्वेशन टैली करने का सोचो. या तो असेट में 10,000 इंक्रीज हो तो फिर से टैली हो जाएगा, असेट कम हो गई फिर से इंक्रीज हो गई, या राइट हैंड साइड पे कुछ कम हो जाए. एक्सपेंस इंक्रीज होने से कैपिटल कम हो जाता है, इसलिए कैपिटल माइनस हो जाएगा. इक्वेशन अपने आप टैली हो जाएगा. इक्वेशन अपने आप टैली हो जाएगा. नेक्स्ट, एवरीवन. थर्ड, रेंट पेएबल. पेएबल है, पेड नहीं किया है, पेएबल है. पेएबल मतलब लाइबिलिटी है, पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी बनती है. रेंट एक्सपेंस है बट पे करना बाकी है, मतलब रेंट पेएबल अकाउंट. सो दिस इज रेंट पेड, कैश अकाउंट आ गया. रेंट पेएबल लाइबिलिटी अकाउंट आ गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब पे करोगे तो कैश बाहर जाएगी, कैश क्रेडिट. बट पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी जनरेट होगी, लाइबिलिटी क्रेडिट. एक्सपेंस अकाउंट एंड लाइबिलिटी अकाउंट. Expenses increases debit, liability also increases credit. पे करोगे तो लाइबिलिटी बनेगी नहीं, बट पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी बनेगी. सिंपल वर्ड्स में तो इंक्रीज रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश. कैश नहीं बोलना होगा, रेंट पेएबल अकाउंट बोलना होगा. 10,000. देखो दोनों एंट्री में ऑब्जर्व करो. व्हाट इज अ कॉमन? रेंट एक्सपेंस इज अ कॉमन. एक्सपेंस है तो एक्सपेंस रहेगा ही रहेगा. इफ यू पे, इफ यू पे कैश विल डिक्रीज, कैश को क्रेडिट किया जाएगा. इफ यू डोंट पे रेंट पेएबल विल इंक्रीज, लायबिलिटी विल इंक्रीज, उसको क्रेडिट किया जाएगा. ठीक है. देन
थर्ड इक्वेशन देखते हैं. लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, रेंट पेएबल, एंड कैपिटल डिक्रीज हो गया बिकॉज एक्सपेंस, रेंट इज एक्सपेंस. नो चेंज इन द असेट्स, कैश गई नहीं ना. तो लेफ्ट एंड राइट, राइट हैंड साइड में 10,000 माइनस 10,000 ऐड, इक्वल आ गया फिर से. सो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, सोचना चाहिए. क्या सोचना चाहिए? हाँ रेंट है तो रेंट डेबिट होगा बिकॉज एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है डेबिट. पे करोगे तो कैश को क्रेडिट करूंगा, अगर पे नहीं करूंगा तो लायबिलिटी को क्रेडिट करूंगा. सिंपल. समझ में आ रहा है? जैसे परचेस के टाइम मैंने बोला था, ध्यान देना, मैंने परचेस के टाइम क्या बोला था, देखो एंट्री फॉर परचेस, हमने 1 लाख के गुड्स परचेस किए तो एंट्री रहेगी परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, सपोज 1 लाख. तो हमने 40,000 कैश में दिए, तो ये हमें पे करना है 1 लाख. तो पे करोगे तो कैश कम होगी, टू कैश 40. चेक दोगे तो बैंक बैलेंस कम होगा, टू बैंक 40. सेटल कर रहे हो अभी भी 20,000, टू क्रेडिटर. पेएबल है, क्रेडिटर मतलब है पेएबल है, लायबिलिटी 20. दिस इज द एंट्री. सो वही मैं आपको समझा रहा हूं, रेंट की भी एंट्री यही है बिकॉज दिस इज एक्सपेंस, रेंट इज ऑल्सो एक्सपेंस. सपोज 1 लाख का रेंट है, रेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1 लाख. 2, 1 लाख का एक्सपेंस है तो कैसे पेड किया, कैश 40 सपोज, चेक दे दिया, बैंक बैलेंस कम होगा टू बैंक 40. बाकी डोंट से क्रेडिटर, से टू रेंट पेएबल. क्या फर्क है दोनों एंट्री में? कुछ नहीं. एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट. कैश डिक्रीज क्रेडिट, कैश डिक्रीज क्रेडिट. बैंक बैलेंस डिक्रीज क्रेडिट, बैंक बैलेंस डिक्रीज क्रेडिट. क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिट. खाली नेम चुआ है, वहां पे परचेस बोला, यहाँ पे रेंट बोला, बस. मैं सैलरी बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. कंसेप्ट समझ लेना. 1 लाख का एक्सपेंस हुआ है, उसमें से जितना पेमेंट है उतना कैश जाएगा, जितना पेमेंट नहीं होगा उतनी लायबिलिटी बनेगी. बहुत सिंपल है. अगर आप मैचिंग करना सीखते हो ना, समझ में आ रहा है, और आप कंपेयर करते हो चीजों को, तो दैट दे विल मेक योर लाइफ इजी. नेक्स्ट. सो जब हमने रेंट एक्सपेंस किया तो रेंट को डेबिट हुआ दोनों साइड पे. अगर हम पे करेंगे तो कैश विल डिक्रीज, इसलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा. बट अगर हम पे नहीं करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी बनेगी रेंट पेएबल, सैलरी पेएबल, वेजेस पेएबल, ऐसे पेएबल बोल के लाइबिलिटी बनेगी. डोंट से क्रेडिटर्स बिकॉज क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, परचेस एंड सेल, ये जो वर्ड है, 4 वर्ड्स, परचेस, सेल्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर फॉर गुड्स, आर फॉर गुड्स. गुड्स की वजह से वो बनते हैं. बाकी जगह पे हम पेएबल बोलते हैं, ठीक है, लाइक रेंट पेएबल, सैलरी पेएबल, वेजेस पेएबल, ऐसे हम बोलते हैं. ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखो अब, थर्ड वाले ट्रांजैक्शन. थर्ड वाला ट्रांजैक्शन मतलब आपको 10,000 कभी ना कभी पे करना है, ये समझ लेना. ये जो सेकंड वाला 10,000 ना आपको कल जाके पे करना पड़ेगा कभी ना कभी. आगे कभी कभी हम एडवांस में देते हैं, रेंट पेड इन एडवांस. थर्ड, पेड इन एडवांस इज अ प्रीपेड asset. Prepaid rent account. Don't say expense, it is asset. Anything paid in advance, ऊपर लिख के रखना टॉप में, anything paid in advance is not expense but asset. ये स्टेटमेंट आप लाइफ भर याद रखोगे. Anything paid in advance, anything paid in advance is
not expense but asset. Anything paid in advance is not expense but asset. नॉट एक्सपेंस बट एसेट. लोगों को लगता है पेड इन एडवांस इज एक्सपेंस, क्योंकि उसमें नाम वर्ड होता है एक्सपेंस, वो असेट है. ठीक है. प्रीपेड रेंट एंड कैश, बिकॉज आपने पेड किया है. बोथ आर असेट अकाउंट, बोथ आर असेट अकाउंट. वन एसेट इंक्रीजेस, अनदर एसेट डिक्रीजेस. जो इंक्रीज हो रही डेबिट, जो डिक्रीज हो रही क्रेडिट, इसलिए एंट्री आएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट. टू कैश. You may find initially complicated, but don't worry at all. Right? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा हर चीज. So it is prepaid rent to cash. पहले ही पे करके रखा है, पहले ही पे करके रखा है, is an asset. और बाद में इसको एक्सपेंसेस में कन्वर्ट किया जाएगा. वो कैसे करना है वो अलग कंसेप्ट समझाऊंगा, डोंट वरी. सो तीन चीजें, एक्सपेंस हुआ और पेड किया, एक्सपेंस हुआ और पेड भी किया. एक्सपेंस हुआ बट पे नहीं किया तो लायबिलिटी बन गई. और एक्सपेंस पहले ही पेड कर दिया, हुआ नहीं है, पहले ही पेड कर दिया एडवांस, तो एक्सपेंस नहीं हुआ, एसेट है. इक्वेशन लिखो. ठीक है. प्रीपेड रेंट एक्सपेंस एसेट इंक्रीजेस, and cash decreases. You can see equation will definitely vary. No change in the capital because it is not expense. No change in the liability because हमने पेड किया है. लिखो. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. आगे. ठीक है. तो ऐसे एंट्री याद रखने की. देखो 1 लाख का रेंट है सपोज, उसमें से जितना पे करेंगे कैश कम होगी, जितने का चेक देंगे उतने से बैंक बैलेंस कम होगा, और जो पे नहीं करोगे लायबिलिटी बनेगी. ये मैक्सिमम एंट्री, इससे ज्यादा एंट्री नहीं हो सकती, इससे ज्यादा एंट्री हो ही नहीं सकती कभी. सेटलमेंट कैसे हो सकती है, जितना 1 लाख का एक्सपेंस है थोड़ा कैश में करोगे, थोड़ा चेक में करोगे, बाकी बोलोगे बाद में पे करूंगा. 1 लाख के परचेस किए, सेटल कैसे करोगे, सपोज 40,000 की कैश दे दी, चेक दोगे और बोलोगे बाकी बाद में पे करूंगा. इससे ज्यादा सेटलमेंट क्या हो सकती, कुछ भी नहीं. एक्सपेंस एंड सेटलमेंट, एक्सपेंस एंड सेटलमेंट, परचेस एंड सेटलमेंट, रेंट एंड सेटलमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आगे आगे लिखो. नेक्स्ट एग्जांपल. salary paid, salary for the month is rupees 20,000, of which only 15,000 is paid. Second, advance salary paid to an employee, advance salary of rupees 2,000 paid to an employee. किसी एम्प्लॉय बोलोगा मुझे थोड़ा एडवांस में दे दो, मुझे जरूरत है, तो हमने उसको एडवांस सैलरी दे दी. बाद में
नेक्स्ट मंथ के सैलरी में हम उसको 2000 कम देंगे, बराबर ना? क्या बोलेंगे, पहले ही 2000 दिए थे, सपोज उसकी सैलरी, उस एम्प्लॉय की सैलरी 5000 है, नेक्स्ट मंथ में हम उसको 2000 कम देंगे, 3000 देंगे। क्यों? बिकॉज इस मंथ में हमने उसको 2000 एक्स्ट्रा दिया है। वही मैं समझा रहा हूँ कि एडवांस आज दोगे ना तो कल उससे माइनस करोगे, उसको बोलोगे तुझे 2000 तो पहले ही एडवांस लेके रखा है, लिखो। अब इसके इंक्रीज इक्वेशन करना है, ठीक है, लिखो ठीक से। ट्रांजैक्शन लिखो। और मैं इस चैप्टर पे इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूं, बिकॉज ये समझ में आ गया ना तो आगे की जर्नी इजी रहेगी। आगे की जर्नी इजी ऐसे नहीं है, बट मैं इसमें बहुत सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूं कि जो मुझे लॉन्ग टर्म लगेगा, एंड तक लगेगा। नेक्स्ट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, हैंग ऑन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रन्स नहीं बन रहे तो पिच पे विकेट नहीं छोड़नी होती है, रुकना होता है। You have to spend time on a pitch, then only you can see the ball clearly, and then you can hit the ball, or you can score the runs. Try to understand. The batsman is not supposed to throw the wicket. उसको डटे रहना होता है, and जैसे he will spend the time, right, वो समझ, उसको जैसे से टाइम स्पेंड करेगा वैसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, वो स्कोर करेगा। सिमिलर यहाँ पे भी है। Try to understand. Today, each transaction is a new transaction for you because you are learning accounts for the very first time. So this will happen, it's bound to happen, don't worry. और आप ही इससे गए नहीं, everyone has gone through this, everyone. Next. So अगर वो लोग डट के रहे थे, उन्होंने किया, तो तुम लोग भी कर सकते हो, इतना याद रखना। So solution. कितने की सैलरी है? 20 मंथ की। हमने कितना पेड किया? 15। मतलब 5000 क्या होगा? टाइप द आंसर। 20 में से खाली 15000 पेड किए, 20 का 20 पेड नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइप द आंसर। व्हाट डू थिंक? परफेक्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कोई बोल रहा है सर सैलरी पेएबल, गुड, परफेक्ट। 20 में से खाली 15 पेड किया, तो अभी भी 5000 पे करना बाकी है, मतलब क्या बन गई? लाइबिलिटी। 5000 पे करना बाकी, करना पड़ेगा ना, गुड गुड। सो अब लिखो फर्स्ट का, विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व? क्या? सैलरी अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस है। दूसरा है आपने कैश दे दी, असेट, यू हैव गिवन कैश, कैश कम हो गई। एंड तीसरा है सैलरी पेएबल, जो नहीं पे किया वो सैलरी पेएबल। लाइबिलिटी, 3 टाइप के अकाउंट आ गया। सैलरी इज एन एक्सपेंस, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। कैश पे करोगे इसलिए डिक्रीज होगी, क्रेडिट। जितना पे नहीं करोगे उतनी की लाइबिलिटी बन जाएगी, मतलब लाइबिलिटी विल इंक्रीज, क्रेडिट। देयरफॉर एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000। 2 कैश, you have given cash of 15,000, 20 में से 15 कैश में दे दिया, अभी भी 5 बाकी है, वो बोलते बाद में पे करेंगे। 2 सैलरी पेएबल, 2 सैलरी पेएबल, लिखो 2 सैलरी पेएबल। टू सैलरी पेएबल 5,000, 2 सैलरी पेएबल 5,000 हो गए इंटरली, यस, ठीक है। देन सेकंड, किसी एम्प्लॉय को हमने एडवांस में 2000 दे दिए, सो प्रीपेड सैलरी, एडवांस इज अ प्रीपेड, एनीथिंग पेड इन एडवांस इज नॉट एक्सपेंस बट असेट, इंक्रीजेस डेबिट। क्योंकि बाद में उसको 2000 कम देने वाले, हम आज 2000 देंगे, कल माइनस करेंगे उसके सैलरी से। 2 राइट। दूसरा इज कैश, कैश दी ना आपने,
ओके, प्रीपेड सैलरी अकाउंटेबल 2000 टू कैश 2000। दोनों का इक्वेशन साथ में लिखता हूं। इक्वेशन 1 में सैलरी इंक्रीज बाय 20,000, सॉरी गलत लिखा है। सैलरी इंक्रीज मतलब एक्सपेंस से एक्सपेंस से तो कैपिटल से माइनस होगा। 15,000 कैश दी एंड 5,000 पेएबल है, लाइबिलिटी बन गई। You can see left hand side asset side has decreased by 15,000, right hand side minus 20 plus 5 decreased by 15,000, net 15,000। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ट्रांजैक्शन का इक्वेशन। सेकंड का प्रीपेड सैलरीज 2000, असेट इंक्रीज, प्रीपेड असेट इंक्रीज एंड दूसरी ही असेट डिक्रीज हो रही कैश। नो चेंज इन द कैपिटल, नो चेंज इन द लायबिलिटी। लिखो no change in the asset, no change in the liability। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब लिखो एग्जाम्पल। फर्स्ट, गुड्स परचेस्ड रुपीज 1,50,000, कैश पेड रुपीज 40,000, checks issued रुपीज 1 लाख। ठीक है, सेकंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस is of rupees 50,000। ठीक है, कैश पेड रुपीज 20,000, चेक इशूड रुपीज 20,000। थर्ड, right, after a month, right, checks issued to supplier of goods and advertisement agency। देखते हैं, 3 ट्रांजैक्शंस लिए,
अब देखते क्या होगा। लगेंगे डिफिकल्ट बट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं उनमें। कोई मुझे बोलेगा कि सप्लायर को एक मंथ के बाद कितने का चेक देना पड़ेगा, ओरली बोलो, ओरली सप्लायर को एक मंथ के बाद कितने का चेक देना पड़ेगा, व्हाट यू फील, व्हाट यू फील। सप्लायर ऑफ गुड्स को गुड 10,000 का, एंड इसको कितने का देना पड़ेगा, सप्लायर ऑफ गुड्स का, नहीं कुछ तो गलत बोल रहे हो, सप्लाई गुड्स के लिए कितना देना पड़ेगा, ओके ओके बराबर है, बराबर है, बराबर है, ठीक है 10,000 बराबर। एंड एडवर्टाइजमेंट वाले को कितना देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट वाले को एक मंथ के बाद कितना पे करना होगा एडवर्टाइजमेंट वाले को, 10,000 ही, ठीक है। ये हिसाब लगाना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अकाउंट्स इज मोर ऑफ काइंड ऑफ हिसाब कि कितना दिया है कितना बाकी, लाइक दैट। चलो इंट्रीज लिखते हैं, सोल्यूशन। फर्स्ट, गुड्स परचेस किए, जब गुड्स परचेस कर रहे हो तो कौन सा अकाउंट रहेगा, परचेसेस। परचेसेस कोई लोग उसको एक्सपेंस बोलते हैं, मेजॉरिटी लोग उसको एक्सपेंस बोलते हैं, कोई लोग उसको असेट बोलते हैं, कुछ भी बोलो, असेट और एक्सपेंस का रूल सेम ही है, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, इंक्रीज हो रहे डेबिट, रूल्स आर सेम। नेक्स्ट, आगे परचेस एक्सपेंस हो गए, राइट, उसके बाद परचेस एक्सपेंस हो गए, यस। फिर 1,50,000 के एक्सपेंस है, बराबर, उसमें से 40,000 कैश दे दी, फिर चेक दे दिया 1,00,000 का, एंड बाकी पे करना बाकी है, उसको बोला जाएगा क्रेडिटर्स। डोंट से परचेस पेएबल, दैट इज रॉन्ग, यू हैव टू यूज द वर्ड क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी बन गई, इंक्रीज। देखो क्या होगा, ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट, कितना, 1,50,000, ये सेटल करना, इतने के गुड्स परचेस किए, कैसे सेटल होंगे, कैश दी तो कैश, कैश विल गो आउट, डिक्रीज 40, चेक दे दिया टू बैंक, टू बैंक 1,00,000, अभी भी 10,000 देने बाकी है, टू क्रेडिटर्स। डोंट से परचेस पेएबल, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। आगे, डोंट से परचेस पेएबल, से राइट व्हाट, क्रेडिटर्स, दैट इज रॉन्ग। इफ यू यूज द वर्ड लाइक सैलरी पेएबल, जैसे कि परचेस पेएबल बोल के वर्ड्स यूज करते हो, इट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट, आगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकंड ना खाली, एक सेकंड। ओके, सो ध्यान देना अब, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1,50,000 कैसे पेड किया, 40,000 की कैश देके, 1,00,000 का चेक देके, एंड बाकी जो पेड नहीं किया वो लाइबिलिटी बन गई, जो पे नहीं करोगे लाइबिलिटी। अब ध्यान देना, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ध्यान देना, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। देखो, एक्सपेंस परचेसेस इंक्रीज, इक्वेशन में परचेस मतलब स्टॉक, 1,50,000 का स्टॉक इंक्रीज होगा। परचेस की थोड़ी अलग ट्रीटमेंट होती है इक्वेशन में, उसको हम स्टॉक बोलते हैं, इट्स अ कंपाउंड एंट्री, यस इट्स कंपाउंड एंट्री, ठीक है। स्टॉक 1,50,000 का स्टॉक इंक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गई 40 की, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया 1,00,000 का, चेक दोगे ना तो बैंक से पैसे जाएंगे, ठीक है, और क्रेडिटर्स बन गए 10,000 के,
नो चेंज इन द कैपिटल. गुड्स परचेस करो तो कैपिटल में चेंज नहीं होगा. गुड्स प्रॉफिट पे सेल करोगे तो प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा. अगर गुड्स लॉस पे सेल करोगे लॉस की वजह से कैपिटल माइनस होगा. सेल करते टाइम परचेस सेल, अगर परचेस की वजह से कभी कैपिटल चेंज नहीं होगा, बट अगर सेल करोगे प्रॉफिट लॉस होगा तो कैपिटल चेंज होगा. ठीक है. इक्वेशन यू कैन टैली. ओवरऑल दिख रहा है 10,000 इंक्रीजेस, यहाँ पे दिख रहा है 10,000 इंक्रीजेस. इन इक्वेशन ऑब्वियसली टैली होगा. ठीक है. नेक्स्ट, अगर उसको मुझे लेजर में दिखाना है तो ध्यान देना. There are 4 tanks. Try to imagine now. One, two, three, and 4. There are 4 tanks. ध्यान देना. Every tank has 2 sides, left hand side, right hand side. Left hand side को डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. कौन कौन से अकाउंट है? एक है परचेस, दूसरा कैश, तीसरा बैंक एंड तीसरा क्रेडिटर्स. देखो सोचना कैसा है. परचेसेस इंक्रीज इज डेबिट, परचेसेस डिक्रीज इज क्रेडिट. कैश इंक्रीज डेबिट, कैश डिक्रीज इज क्रेडिट. बैंक बैलेंस इंक्रीज इज डेबिट, बैंक बैलेंस डिक्रीज इज ए क्रेडिट. क्रेडिटर्स राइट इंक्रीज इज क्रेडिट, डिक्रीज इज डेबिट. इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हुआ? परचेसेस इंक्रीज बाय 1,50,000, परचेसेस इंक्रीज बाय 1,50,000. इसलिए हम बोलते हैं परचेस के इंक्रीज साइड पे लिखेंगे. एंड व्हाट इज द इंक्रीज साइड ऑफ द परचेसेस? डेबिट साइड ऑफ द परचेसेस. इसलिए बोला जाता है परचेस को डेबिट करना. मैं आपको एक ही एंट्री अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं, तो आपको कहां पे ना कहां पे क्लिक होगा. फिर कैश कम हो गई 40,000 की, कैश डिक्रीज हो गई तो कैश के डिक्रीज साइड पे लिखो 40. कैश की डिक्रीज साइड इज क्रेडिट साइड, इसलिए बोलते कैश क्रेडिट करो. बैंक बैलेंस 1,00,000 से कम होगा, इसलिए बैंक के डिक्रीज साइड पे लिखो विच इज क्रेडिट. एंड क्रेडिटर्स को 10,000 पे करने, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर्स के इंक्रीज साइड पे लिखो क्रेडिट साइड पे. सो परचेस के डेबिट साइड पे आएगा 1,50,000, कैश के क्रेडिट साइड पे आएगा बिकॉज कैश क्रेडिट हो रहा है इसलिए कैश के क्रेडिट साइड पे आएगा 40, बैंक के क्रेडिट साइड पे आएगा 1,00,000, क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड पे आएगा 10,000. देयर आर मेनी ऑप्शंस. आप बोल सकते हो असेट इंक्रीज ये डेबिट होगा, असेट डिक्रीज क्रेडिट होगा, असेट डिक्रीज क्रेडिट होगा, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट होगी. ऐसे बोल सकते हो या ऐसे भी देख सकते हो. इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस. मैं आपको वही समझा रहा हूं. नेक्स्ट आगे. ठीक है आगे. अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं. नेक्स्ट देखते हैं. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ₹50,000, कैश पे 20, चेक इश्यू 20. सेकंड वाला, सेकंड फर्स्ट वर्ब सेकंड. देयर आर अकाउंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट. मैं शॉर्ट में लिखता हूं एडीबीटी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट. You paid cash, you paid check, you issued by check, you paid by issue of check. और आपको 50,000 में से 20 पेड किया है, 10,000 अभी भी पेएबल है. एडवर्टाइजमेंट पेएबल. डोंट से क्रेडिटर्स, नाउ से पेएबल. दे आर लायबिलिटीज ओनली. क्रेडिटर्स अकाउंट विल सीम रॉन्ग यहाँ पे. ठीक है. एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है डेबिट, कैश एसेट है डिक्रीज हो रही है क्रेडिट, बैंक बैलेंस एसेट है डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट, एंड पेएबल इज लायबिलिटी. एनी पेएबल इज लायबिलिटी. इंक्रीज हो रहा है
Therefore increase एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 की एडवर्टाइजमेंट है तो पेड कैसे हो सेटल कैसे हुई कैश दी सर टू कैश मतलब कैश कम हो गई 20 50 में से 20 दे दिया सर चेक इशू किया तो बैंक बैलेंस कम होगा टू बैंक 20 50 में से अभी तक 40,000 सेटल हो गया 10,000 अभी भी पे करना बाकी है टू एडवर्टाइजमेंट पेएबल अकाउंट सेटलमेंट है लिखो जल्दी करो खाली सो 10,000 इज ए लाइबिलिटी पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी बनेगी पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी बनेगी आगे नेक्स्ट पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी बनेगी नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी देखते हैं क्या स्टेटस है असेट्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ कैपिटल विल डिक्रीज 50,000 का एक्सपेंस बन गया कैपिटल विल डिक्रीज ठीक है अब ध्यान देना कैश कम हो गई 20,000 बैंक बैलेंस कम हो गया 20 से एंड लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 10,000 पेएबल minus 40,000 overall is it same minus 40,000 right hand side minus 40,000 लेफ्ट हैंड साइड होना ही चाहिए अब सर हम अकाउंट निकाल के देखते हैं ये जो निकाल रहा हूं ना आपको समझने के लिए अलग अलग ढंग से सिखा रहा हूं कहां पे ना कहां पे क्लिक होना चाहिए देखते हैं कोई भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट क्रेडिट हर कोई भी अकाउंट उठाओ these are tanks you are filling up the tanks पहला अकाउंट है एडवर्टाइजमेंट फिर है कैश फिर है बैंक और एडवर्टाइजमेंट पेएबल ऐसे 4 अकाउंट्स थे दिस इज एक्सपेंस असेट लाइबिलिटी एक्सपेंस के केस में डेबिट इज इंक्रीज क्रेडिट इज डिक्रीज कैश असेट के केस में डेबिट इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज लाइबिलिटी केस में क्रेडिट इज इंक्रीज डेबिट इज डिक्रीज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंक्रीज हो गए 50,000 के एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट 50,000 की इंक्रीज हो गई तो उसका इंक्रीज साइड पे लिखा मतलब डेबिट साइड पे लिखा इसलिए एडवर्टाइजमेंट डेबिट कैश 20,000 से कम हो गई तो कैश के डिक्रीज साइड पे लिखा मतलब क्रेडिट साइड पे लिखा इसलिए कैश क्रेडिट चेक इश्यू किया 20,000 का बैंक बैलेंस 20,000 से कम होगा बैंक के डिक्रीज साइड पे लिखा मतलब क्रेडिट किया इसलिए इंक्रीमेंट बैंक क्रेडिट है एंड 10,000 की लाइबिलिटी बन गई इसलिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट पेएबल को एडवर्टाइजमेंट पेएबल लाइबिलिटी को इंक्रीज साइड पे लिखा इसलिए उसको क्रेडिट किया वो क्रेडिट साइड है ठीक है तो ऐसे सोचना है इट्स योर चॉइस आपको कैसे सोचना है ठीक है एंड फिर एक मंथ के बाद क्या हुआ हमने जो इस क्रेडिटर को 10,000 पेएबल है इस क्रेडिटर को जो 10,000 पेएबल है लाइबिलिटी पेड कर दी चलो थर्ड पेड टू क्रेडिटर्स फॉर गुड्स रुपीज 10,000 बराबर ना
by check. There are two accounts now. एक है परचेस्ड नहीं है, परचेस अकाउंट नहीं है, परचेस तो पहले हुए, आज खाली क्रेडिटर्स को जो पेबल था वो पे कर रहे हो. सो क्रेडिटर्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट. कैश नहीं, चेक मतलब बैंक, चेक मतलब बैंक. क्रेडिटर्स इज ए लाइबिलिटी, ऑलवेज लाइबिलिटी, बैंक इज असेट. क्रेडिटर्स का पेमेंट हो रहा है मतलब अब वो बाद में पे नहीं करना होगा, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए. पे कर दोगे तो डिक्रीज हो जाएंगे, बैंक बैलेंस भी डिक्रीज होगा. इसलिए क्रेडिटर्स को डेबिट होगा, बैंक को क्रेडिट होगा. एंट्री आएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. तो बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000 10,000. Creditors account debit to bank 10,000 10,000. Creditors account debit to bank 10,000 10,000. Next, paid to advertisement agency. Rupees 10,000 by check. जो बाकी था वो पे कर दिया. डोंट से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया है, नो. जो लाइबिलिटी थी वो पे की है. ध्यान देना मैं आपको क्या समझा रहा हूं. लाइबिलिटी पे कर रहे हो, लाइबिलिटी पे कर रहे हो, तो देयर आर टू अकाउंट्स. यहां पे कौन सा अकाउंट बना था? एडवर्टाइजमेंट पेएबल अकाउंट था ना, ये पे करना बाकी था ना. लाइबिलिटी अकाउंट कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट पेएबल, तो वो यूज करो, एडवर्टाइजमेंट पेएबल. लाइबिलिटी अकाउंट माइनस हो जाएगा, पेड हो जाएगा. आपने चेक दिया, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा. एडवर्टाइजमेंट पेएबल इज लाइबिलिटी, एनी पेएबल इज लाइबिलिटी, बैंक इज ऑलवेज एसेट. लाइबिलिटी पे हो रही है मतलब कम होगी, आगे से आपको फिर से उसको पे करने की जरूरत है कि नहीं? आप एक बार पे कर दोगे, अब बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा. डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट. देयरफॉर एंट्री आएगी एडवर्टाइजमेंट पेएबल अकाउंट डेबिट. टू बैंक, कैश, कैश दे दो कैश, चेक दे रहे इसलिए बैंक. मतलब बाद में आपको 10,000 पे करना पड़ा ना, तब नहीं पेड किया था, आज पे किया है. सो आज एक्सपेंस मत बोलो, आज लाइबिलिटी पेड हो गई. आज क्या हो गई? लाइबिलिटी. तब एक्सपेंस हुआ जो पेएबल है, एक मंथ पहले एक्सपेंस हुआ जो पेएबल है, आज वो पेएबल पेड हो रहा है. टुडे लाइबिलिटी इज गोना सेटल. ठीक है, लिखो. ठीक है, इक्वेशन अगर आप करते हो, दिस इज 3A एंड दिस इज 3B. इक्वेशन देखो, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. क्या हो जाएगा? 10,000 का चेक दे रहे हो, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा. 3A बैंक बैलेंस कम होगा, क्रेडिटर्स विल डिक्रीज बाय 10,000. देखो जब हमने गुड्स क्रेडिट पे लिए थे तो इक्वेशन में आपने 10,000 इंक्रीज किए थे लाइबिलिटी में. अब इनको पे कर रहे हो तो लाइबिलिटी से माइनस हो जाएगा, अब क्रेडिटर्स नहीं रहेंगे. 3B, 10,000 का चेक इश्यू किया एजेंसी को, 10,000 की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, पेएबल पेड हो जाएंगे. देखो जब पेएबल बना था तो आपने, जब पेएबल बना था तो आपने 10,000 ऐड किया था, अब भी वो पे हो रहा है, माइनस हो रहा है. ओवरऑल क्या दिखेगा दोनों साइड से? 20,000 का असेट कम हो जाएगा, asset is used to pay off the liability. 20,000 का असेट कम हो जाएगा, 20,000 की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, इक्वेशन टैली होगा. लिखो. ठीक है,
आगे नेक्स्ट, आगे अच्छा, किसी का डाउट है अभी तक? यस, एनीवन हैज डाउट टिल नाउ? तो हम एक्सपेंस के साथ डील कर रहे हैं। मैंने अभी तक क्या समझाया, ध्यान देना, एक सेकंड। मैंने अभी तक समझाया कि एक्सपेंसेस पेड करोगे तो कैश कम होगी, एक्सपेंस इंक्रीज होगी। एक्सपेंस पे नहीं करोगे तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और बाद में लाइबिलिटी पे करोगे तो लाइबिलिटी कम होकर कैश कम हो जाएगी। ये तीन चीजें अभी तक हमने समझी। किसी को डाउट है यहां तक? एनीवन हैज डाउट टिल नाउ? टिल नाउ? ओके, एक सेकंड। देखो हमने क्या किया है, मतलब आपको क्लिक होगा। ये सब पहले व्हाट डू मैं गुड्स परचेस वगैरह ये सब है। फर्स्ट चैप्टर इज जनरली लिंक्ड विद द लास्ट चैप्टर, सो डोंट वरी उसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कितना टेंशन मत लेना, उसमें से क्या मैंने पहले थोड़ा डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर। देखो व्हाट डू बाय बुक कीपिंग वगैरह वगैरह, ये चीजें मैं लास्ट चैप्टर में लिंक करके दूंगा। दिस इज द सिलेबस एक्चुअली, ठीक है। डोंट वरी, अभी फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट एग्जाम में पूछते भी नहीं, वो लास्ट एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछते, बिकॉज दिस इज लिंक टू द लास्ट चैप्टर, सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। दो ये रहने दो। हाँ, ये डिस्कस किया, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, कैश एंड क्रेडिट, बराबर। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, बार्टर ट्रांजैक्शन, सपोज व्हाट डू बाय गुड्स, व्हाट डू बाय कैपिटल, व्हाट डू बाय ड्राइंग्स, व्हाट डू बाय डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। देन ये आने वाला है, एक दो दिन में ये आ जाएगा, ठीक है। देन कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये कंसेप्ट एंट्री में समझानी है। उसके बाद सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, राइट, ये कोई लोगों को पता है, कोई लोगों को नहीं पता है, डोंट वरी। एंड देन अकाउंटिंग ईयर, अप्रैल से मार्च ईयर होता है इंडिया में, अप्रैल से मार्च होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक सेकंड, आगे गुडविल इज ए मनी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, इज ए मनी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है ना मार्केट में, उसको गुडविल बोलते हैं, और उसको मनी में कन्वर्ट करा किया जाता है। फॉर्मूलेज होते हैं, यू विल लर्न दोस फॉर्मूलेज इन 12th, ठीक है। गुडविल कैलकुलेशन के फॉर्मूलेज 12th में, लेकिन इट इज गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज अकाउंट्स में जो भी चीज आएगी वो मनी वैल्यू में आनी चाहिए, राइट। इट इज इंटेंजिबल एसेट, ये हमने देखा था। प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, वही तो आप अभी तक देख रहे थे कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस है प्रॉफिट, रहने तो ये कंसेप्ट अभी समझेगी भी नहीं इतनी। दिखता है प्रॉफिट लॉस बहुत इजी है, बट अकाउंट्स में उसको एक्चुअली अकाउंट के थ्रू कैसे ढूंढना है, दैट इज ए बिग चैलेंज। एसेट्स हमने डिस्कस किए, व्हाट डू बाय फिक्स्ड एसेट्स, व्हाट डू बाय करंट एसेट। फिक्टिशियस एसेट मैंने बोला बंद हुआ है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बंद हुआ है, टेक्स्ट बुक में क्यों है डोंट नो। लाइबिलिटीज हमने डिस्कस किया, फिक्स लाइबिलिटीज या जिसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बोलते हैं, या नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, कैपिटल के दूसरा नाम है नेटवर्थ और इक्विटी। नेटवर्थ कैपिटल का दूसरा नाम है नेटवर्थ और इक्विटी। देन आगे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज, टोटली डिफरेंट, गुड कंसेप्ट, जैसे गुड कंसेप्ट, बट अभी समझाने जाऊंगा तो क्लिक नहीं होगा, क्योंकि अभी उतना हमें पता नहीं कि ये कंसेप्ट, दिस इज वेरी टेक्निकल कंसेप्ट। सो जब टाइम आएगा मैं बोल दूंगा, डोंट वरी। हर चीज का एक पीरियड होता है, तब वो लेके आना है। इन ये कन्वेंशंस, इसमें से हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझा था थोड़ा, मनी मेजरमेंट समझा था, मतलब ओनली दोस थिंग्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड। कॉस्ट कंसेप्ट डिप्रेशन चैप्टर का है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट फाइनल अकाउंट्स का है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट फाइनल अकाउंट्स का है, गोइंग कंसर्न फाइनल अकाउंट्स का है, राइट। रियलाइजेशन इज अ फाइनल अकाउंट, accrual final account, dual aspect, every transaction has two effect, debit and credit,
every transaction has two-fold effects, right? Every transaction or event has two aspects, dual aspect. हर चीज दो अकाउंट को हिट करेगी, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट सब फाइनल अकाउंट के कंसेप्ट है, सब कंसेप्ट एक जगह पे लाके रखे चैप्टर नंबर 1 में। सो अभी उसका इतना नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या और आईएफआरएस क्या, राइट। अभी फिलहाल तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा, ये सब चीजें मैं लास्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज तब तक आपको समझ में आएगा ये सब क्यों कर रहे हो, ठीक है। देन कुछ अननेसेसरी आपको प्रेशर आएगा कि अरे क्या है ये सब चीजें, राइट, इसलिए अभी नहीं बात करूंगा। और कभी कोई भी नहीं बात करता फर्स्ट चैप्टर में, बिकॉज वो पता है कि बच्चों को कुछ भी नहीं पता है, तो ये चीजें बात करके फायदा नहीं। हाँ, हमने ये कर रहा, ये लुकासा दी पैसियोली, लुकासा दी बैर्गो पैसियोली, ही वाज ए इटालियन मैथमेटिशियन who invented double entry system, debit and credit वाला ये लुकासा दी पैसियोली। he was a Italian merchant, लुका दी बार्गो पैसियोली, right? On this date इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। देन देन राइट, उसने डेबिट एंड क्रेडिट टर्म्स यूज किए, किसने, ये लुकासा दी पैसियोली। ही इज ए लाइक आप बोल सकते हो, राइट, आप उसको बोल सकते हो कि, राइट, आप बोल सकते हो कि ये जो है लुकासा दी पैसियोली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज ए इन्वेंटर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ही इज ए इन्वेंटर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डेबिट एंड क्रेडिट जो हम देख रहे हैं ना, इंक्रीज डिक्रीज, ये इसने ढूंढा है। देन मैंने एक दो बार नाम भी बोला था लुकासा दी पैसियोली, ठीक है। देन वी फॉलो ओनली एंड ओनली डबल एंट्री, ये ओल्ड है, इंडियन सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, सिंगल एंट्री, वी फॉलो डबल एंट्री, डेबिट एंड क्रेडिट, हम क्या फॉलो करते हैं, डबल एंट्री। देन डोंट फॉल इनटू दिस डबल एंट्री सिस्टम, राइट, is most scientific method of recording the transactions in the, आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, खाली डबल एंट्री सिस्टम है, आपके टेक्स्ट बुक में खाली और खाली डबल एंट्री सिस्टम है। पहले कभी सिंगल एंट्री फॉलो की जाती, एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट जब डेवलपमेंट नहीं थी, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम डबल और टू इफेक्ट्स of each transaction recorded, that is debit and credit. Every debit has equal and corresponding credit of the same amount is the basic principle of double entry. Debit is equal to credit होना चाहिए, every debit has credit, every credit has debit, ठीक है। Then ये फाइनल अकाउंट्स है, देन ये आपका सिलेबस है, ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ऐसे ये पूरा सिलेबस उन्होंने दिखाया है। आगे मैं समझा रहा हूं, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है। मैंने ये वाला लिया है, आगे होगा, मैंने एक सेकंड, मैंने ये वाला यूज किया, दिस क्लासिफिकेशन इज इररिलेवेंट, ये जो क्लासिफिकेशन ना, दिस इज इररिलेवेंट। मैं ये सिखाऊंगा, जब आपको जर्नल पे आ जाएगा ना, तो ये भी सिखाऊंगा, तो आपको लगेगा, तो क्लिक हो जाएगा आपको। अभी तो फिलहाल मैंने इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है, मैंने इसके बारे में बोला है। देखो, दिस इज मॉडर्न अप्रोच, मैंने मॉडर्न अप्रोच सिखाया जो फॉलो होता है रियल लाइफ में। असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम्स, एक्सपेंसेस, राइट। असेट्स मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट क्या है बाद में समझाऊंगा, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस पेएबल, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम्स, राइट, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। एक्सपेंस लॉसेस, वेजेस, ऑडिट फीस, लॉस बाय फायर, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे रहेंगे। इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। टू फंडामेंटल रूल्स टू बी फॉलोड, टू फंडामेंटल रूल्स टू बी फॉलोड, ध्यान देना, आर फॉर असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड. मिल गया रूल. इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन देम इज क्रेडिटेड. मिल गया रूल. फॉर रिकॉर्डिंग changes in liabilities, capitals, incomes and gains. Increase in liabilities is credited, decrease in them is debited. मिल गया रूल. आगे increase in capital is credited, decrease in capital is debited. लाइबिलिटी के साथ आप उसको मैच कर सकते हो. Increase in income is credited, decrease in them is debited. देखो ट्रांजैक्शन, accounts involved, right? Accounts involved, rules applied as category, rules applied asset increase, capital increase वाला, and फिर डेबिट कौन सा करना है, क्रेडिट कौन सा करना है, राइट? देखो फिर इक्वेशन assets is equal to capital plus liability. मिल गया. asset is equal to capital plus liability. उन्होंने एग्जांपल्स दिए जो हम कर रहे हैं, और मैं ट्रांजैक्शन एक ही ट्रांजैक्शन लेके सिखा रहा हूँ. एंट्री भी सिखा रहा हूँ, इक्वेशन भी सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे लेजर भी सिखा रहा हूँ. धीरे धीरे लेजर के साथ, टैंक है ना वो लेजर है, टैंक है ना वो लेजर है. धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, एक हो जाएगा. फिर जर्नल, दिखाता हूँ, एक मिनट. ऐसे लिख रहे क्या हम, परचेस टू कैश. थोड़ा इसमें भी घुस चुके हैं, इस चैप्टर में भी घुस चुके हैं, इस चैप्टर में भी घुस चुके हैं हम. डेट वगैरह जाने, वो फॉर्मेट डेट वगैरह प्रॉपर क्वेश्चन लूंगा तो डेट वगैरह भी समझा दूंगा, डेट किधर लिखना है, क्या लिखना है. बट ये कर रहे हैं हम. Purchases to Karina, purchase of goods on from Karina on credit, Priyanka to sales, goods sold to Priyanka on credit, State Bank of India to cash, cash deposit to bank. एग्जाम्पल, कोई ट्रांजैक्शन हमने की है तो हम इस पे धीरे धीरे शिफ्ट हुए. फिर ये क्वेश्चंस करने हुए हमें ऑब्वियसली, एंड धीरे धीरे मैं इसमें आ चुका हूं. दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड. परचेस डेबिट है तो मैंने परचेस के डेबिट पे लिखा होगा. देखो तो मैं धीरे धीरे आपको है ना, मतलब वैसे आई एम लिंकिंग. क्यों टाइम लग रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम ट्राइंग टू लिंक दी चैप्टर्स एक दूसरे के साथ, इसलिए टाइम लग रहा है. आई एम ट्राइंग टू लिंक दिस चैप्टर्स, ध्यान देना. ये 4 चैप्टर में साथ में चला रहा हूं, ध्यान देना. ये 4 चैप्टर में साथ में चला रहा हूं. मैं हर चैप्टर का थोड़ा 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 एक ही इसमें मैं चारों सिखाने का ट्राई कर रहा हूं, और फिर हम इस चैप्टर के अंदर घुसेंगे और एक एक चीज और डिटेल में सीखेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अच्छा भैया कोई डाउट है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप बोलोगे सर कितना स्लो चल रहा है. जब हो जाएगा ना ये 4 चैप्टर डन, आपको लगेगा हो गए, 4 चैप्टर हो गए बोलोगे आप. ये भी है. सो आई एम ट्राइंग टू लिंक द थिंग्स एक दूसरे के साथ. ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 4 चैप्टर डायरेक्टली हो जाएंगे आपके, होंगे ना तो 4 डायरेक्टली हो जाएंगे. सो ये समझना. सो जर्नल, लेजर, लेजर मतलब टाइम्स. धीरे धीरे वो समझ रहे, धीरे धीरे, कभी कभी बीच बीच में बोल रहा हूं. ठीक है. सो ये दिस इज अकाउंट इक्वेशन, दिस इज डेबिट एंड क्रेडिट. सो डोंट थिंक कि हम टाइम पास करें, नॉट एट ऑल. सो हम एक्चुअली 4 चैप्टर्स को हाथ में लेके, क्योंकि मैं देखो क्या है, बुक के हिसाब से जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्या? क्योंकि ना
फ्लिप होता है, किधर का किधर भी होता है, इसलिए मैं मेरे सीक्वेंस में जा रहा हूँ। सो बुक अभी पढ़ोगे तो चलेगा, नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बुक कब, मैंने बोला इस वीक के एंड तक, मैंने बोला कि हम प्रॉपर बुक सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, तब तक बुक्स परचेस करके रखो, हर एक के पास ये टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, मैंडेटरी है। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू।